esa besa, y que esa besa, que esa besa, que esa besa, que esa. Y que esa besa, y que esa besa. Yeah, que esa besa, y que esa besa, que esa besa, que esa besa, que esa. Alright guys, welcome back to Trading for a Dream, the channel which will help you grow your investments in a timely manner. So आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि what is the important stocks for tomorrow, and also I will explain to you what is MSCI index and why we should focus on MSCI index. So ये सारी details आपको मैं बताऊंगा, and also we will see whether we should apply or not for the new IPO which is Aeroflex. Okay, so let's begin. तो पहले हम शुरुआत कर लेते हैं विद सम गुड न्यूज़. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ यू एंड कंग्रेचुलेशंस टू ISRO and all the scientists of India who made the successful landing of Chandrayaan-3 today. So it's a great achievement for us. As a country, we are showing the world how strong we are. Till now only 4 countries have been able to launch and successfully bring their satellite on the moon, and India is one of those 4. And also India is the first country to go as close as to the most southern part of the moon. जो साउथ पोल के सबसे करीब जो कंट्री फिलहाल है, that is India on the moon. So once again congratulations to each one of you and to India as well. ठीक है, now let's focus on some FII DII data and activity for today. So like you can see, this entire month of August, FIRs काफ़ी bearish थे. They were selling, you can see on 14th of August around 2,300 crores, then 17th August को 1,500 crores, 21st को 1,900 crores. But from the last 2 days, you can see on 22nd of August, FIRs का जो selling pressure था, it had reduced. So सिर्फ 495 crores का ही selling था. And today, as per today's data, FIS has purchased 614 crores. So, and you can see that today Nifty and Bank Nifty, although ज़्यादा बड़ा movement नहीं था, but at least they closed in a positive. So, अभी जो current levels है Nifty के, यहाँ से हमें आगे move करने के लिए we need the support of FIS, and hopefully that FIS should continue with the same buying momentum in the coming weeks as well. ठीक है? Now let's focus on some stocks which were used and some companies which were helping the Chandrayaan mission. So you need to focus on companies like Larsen and Toubro, then Hindustan Aeronautics Limited, HAL, then there's Bharat Heavy Electricals, BHEL, MTAR Technologies, and Mishra Dhatu Nigam. So these were the 4 to 5 companies which had given their products and were helping the mission of Chandrayaan. So you might see some movement in these stocks tomorrow. You'll see that these stocks did move today. तो आज आप देखोगे मिश्रा धातु almost 3% का मूवमेंट दिया है, MTAR ने around 5% का मूवमेंट दे दिया ऑलरेडी, BHEL ने आज कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया, HAL ने आज अगेन 3.5% का मूवमेंट दिया, एंड लार्सन एंड टूब्रो ने भी आज अराउंड 1.47% का मूवमेंट ऑलरेडी दे चुके हैं. सो दी स्टॉक्स वो ऑलरेडी इन द फोकस, इसलिए आज ऑलरेडी ये सब स्टॉक्स में मोमेंटम था, एंड दिस इज जस्ट अ गुडविल जेस्चर शोइंग दैट वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ दीज इंडियन कंपनीज एज वेल. सो यू कैन कीप योर फोकस ऑन दीज स्टॉक्स फॉर टुमारो. इनमें वापस कल एक मूवमेंट आने के चांसेस है. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज़ MSCI इंडेक्स. सो मुझे पता नहीं कि आप लोगों में से कितने लोगों को पता है व्हाट इज़ MSCI, वेदर यू आर ट्रैकिंग MSCI or नॉट, बट आई नीड टू टेल यू वन थिंग कि आपको MSCI इंडेक्स पे फोकस रखना है. जैसे ही आप फोकस निफ्टी पे रखते हो, बैंक निफ्टी पे रखते हो, सेंसेक्स पे रखते हो, द सेम वे यू नीड टू फोकस ऑन MSCI इंडेक्स एज वेल. आई टेल यू द रीज़न वाई. सो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज़ MSCI. सो MSCI का जो फुल फॉर्म है, इट्स बेसिकली मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स. सो आप सभी को पता है कि मॉर्गन स्टैनली US का सबसे बड़ा ब्रोकर है, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकर्स है, एंड मॉर्गन स्टैनली ने ग्लोबल इंडाइसेस के लिए अपना एक सेपरेट इंडेक्स बना के रखा है. सो वेन एवर दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन एनी कंट्री, दे go through the MSCI of that country and they invest accordingly.
सो MSCI इंडेक्स का बेस्ट पार्ट क्या है कि जो भी स्टॉक्स MSCI इंडेक्स में है उसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इनफ्लो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ओके, सो विच एवर स्टॉक्स आर इन द इंडेक्स they get much more exposure when it comes to foreign institutional investment. Now, I'll tell you a few stocks that are in the MSCI index, but before that we'll try to understand कौन से factors पे ये stocks को select किया जाता है. So there are 3 important factors for any company to be selected in the MSCI index. पहला जो factor है that is dividend returns. Okay. सेकेंड जो फैक्टर है दैट इज़ कंपनी का टर्नओवर एज़ कम्पेयर टू द सेक्टर परफॉर्मेंस. दे फोकस ऑन कि कंपनी का कितना टर्नओवर है. द थर्ड थिंग व्हाट दे चेक इन द स्टॉक इज़ उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन. ओके, सो जो टर्नओवर है और जो मार्केट कैप है उससे पता चलता है कि हाउ द कंपनी इज़ इम्प्रूविंग, हाउ द कंपनी वॉज वेदर इट्स अ स्मॉल कंपनी और अ बिग कंपनी. ये सारी डिटेल्स मार्केट कैप एंड कंपनी टर्नओवर से काफ़ी कुछ पता चल जाता है. सो बेसिकली जो कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा है उसका वेटेज भी इंडेक्स में ज़्यादा होता है. फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि निफ्टी जो 50 स्टॉक्स है उसमें जो 50 स्टॉक्स के जो वेटेज है इट ऑल डिपेंड्स ऑन विच सेक्टर दे बिलोंग टू. लाइक फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 में फाइनेंस सेक्टर को ज़्यादा वेटेज है, लाइक अराउंड 37%. फिर नेक्स्ट आता है IT, एनर्जी एंड सो फोर्थ. सेम वे MSCI इंडेक्स में भी वेटेज का हिस्सेदारी है. लाइक फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा जो वेटेज मिलता है MSCI इंडेक्स में दैट गोज़ टू फाइनेंशियल्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर. ऑलमोस्ट 26% का वेटेज है इन MSCI इंडेक्स. नेक्स्ट जिसका वेटेज है दैट इज़ IT सेक्टर विथ 17%. फिर आता है एनर्जी सेक्टर विथ 12%. एंड जो सबसे मिनिमम वेटेज है वो इंडेक्स में दैट इज़ फॉर रियल एस्टेट स्टॉक्स. सो सपोज इफ यू आर लुकिंग एट द MSCI इंडेक्स एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स यू नीड टू फोकस मोर ऑन फाइनेंशियल्स, IT, एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. एंड सबसे लीस्ट आपको फोकस करना है हेल्थ केयर पे, कम्युनिकेशन सर्विसेज पे या फिर रियल एस्टेट पे. ओके, नाउ आई टेल यू व्हाट आर द मोस्ट important stocks in this in the index. So MSCI index में जो top companies है that is Reliance Industries, ICICI Bank, Infosys, HDFC Bank, TCS, Axis Bank, HUL, Hindustan Unilever. फिर है भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, L&T, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ITC, मारुति, Asian Paints, HCL Technologies, Titan, Sun Pharma, Tata Motors, SBI, and the list is long. So NTPC, Ultratech Cement, Tata Steel, Nestle, Dr. Reddy's, Tech Mahindra, Wipro, Bajaj Finserv, Apollo Hospitals. ये सारे स्टॉक्स MSCI इंडेक्स के अंदर है एंड ये सारे स्टॉक्स में काफ़ी इन्फ्लोज आता है फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स. FII से काफ़ी सारा इन्फ्लो आता है ये सारे स्टॉक्स में. नाउ व्हाई एम आई स्पीकिंग सो मच अबाउट MSCI इज़ बिकॉज MSCI का जो चेंजेस है, जो सेक्टर रोटेशन है एंड जो चेंजेस है दैट हैपन्स एवरी 4 times a year. सो जो उसके जो रिक्वायरमेंट्स है एंड उसके जो चेंजेस है इट हैपन्स इन द मंथ ऑफ Feb, May, August एंड November. सो नेक्स्ट जो चेंज आने वाला है दैट इज़ गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ November एंड इसका जो रिक्वायरमेंट का जो कट ऑफ लिस्ट है शुड कम आउट अराउंड द मिड ऑफ अक्टूबर. सो अक्टूबर एंड तक या फिर मिड अक्टूबर तक हमें पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक इज़ मोस्ट प्रॉबेबली गोइंग टू कम इन द इंडेक्स इन द मंथ ऑफ November. कैसा होता है कि व्हेन फ्यू स्टॉक्स आर एडेड फ्यू स्टॉक्स आर टेकन आउट एंड फिलहाल जो स्टॉक्स पे फोकस है दैट इज़ पॉलीकैब. सो एज पर रिपोर्ट्स पॉलीकैब के बहुत ज़्यादा चांसेस है टू बी एडेड इन MSCI इंडेक्स इन द मंथ ऑफ November. एंड अगर आप देखोगे कि पॉलीकैब काफ़ी दिनों से काफ़ी बढ़िया रैली में है एंड जब से ये न्यूज़ बाहर आया है ये स्टॉक ने आपको ऑलमोस्ट 8% का मूव दिया है 3 दिनों के अंदर. सो 3 दिनों में जैसी पीपल केम टू नो कि पॉलीकैब के चांसेस है टू ऐड इन द MSCI इंडेक्स, ये स्टॉक में ऑलरेडी रैली आ चुका है.
So not only Polycab, you also need to focus on Tata Communications. अगर टाटा कम्युनिकेशंस 1900 का लेवल तोड़े, फिलहाल वो 1820 के लेवल के आसपास है. इफ़ इट गोज़ अबव 1900, उसका जो स्टॉक प्राइस है, देन इट विल बी एलिजिबल टू जॉइन द MSCI इंडेक्स, बिकॉज उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी उतना मूव होगा. सो द फर्स्ट फोकस वुड बी पॉलीकैब. इफ़ नॉट टाटा कम्युनिकेशंस के चांसेस है, पेटीएम के भी चांसेस है. सो यू कैन कीप योर फोकस ऑन पेटीएम. एंड थोड़े बहुत अदर स्टॉक्स भी है, जैसे कि मैक्रोटेक डेवलपर्स, या फिर आपको पता होगा इट्स नोन एज लोधा बिल्डर्स. सो लोधा पे आपको फोकस करना है. एंड देयर आर 2 more स्मॉल कैप स्टॉक्स लाइक अपोलो ट्यूब्स एंड दालमिया भारत. ये स्टॉक्स के भी नाम आ रहे हैं, विच दे माइट बी एबल टू क्रैक द MSCI इंडेक्स एंड बी एडेड इन द इंडेक्स इन द मंथ ऑफ नवंबर. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, now let's speak on Aeroflex IPO. So for the ones who don't know about this IPO, Aeroflex Industries जो है, it is more into manufacturing and supply environmentally जो friendly metallic जो sheets है, they are into building those kind of products. So उनके जो products है like hoses and gas hoses, vacuum hoses, interlock hoses, so and also like a few things like exhaust connectors and exhaust gas circulators. Now ये जो IPO है, इसका जो फर्स्ट डे था, that was yesterday 22nd of August, and today was the second day. and 2 दिनों में इसको already 21 times already ये IPO बुक हो चुका है. So retail investors are just jumping on this IPO. एंड द रीज़न इज़ बिकॉज ये IPO का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, आपको मिल रहा है 64% रिटर्न्स. सो ये जो IPO का जो प्राइस बैंड है, दैट इज़ फ्रॉम 102 रुपीज़ टू 108 रुपीज़. ओके. आपको जो लॉट साइज है, दैट इज़ 130 शेयर्स, एंड एक लॉट का आपको कॉस्ट आएगा अराउंड 14,080 रुपीज़ के आसपास. ओके. सो अगर आपको अप्लाई करना है, यू कैन अप्लाई विथ 14,000 रुपीज़. ऑलवेज सिलेक्ट द कट ऑफ प्राइस. एंड लाइक आई सेड, ये IPO का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, दैट इज़ ट्रेडिंग अराउंड 65 रुपीज़ पर शेयर. सो अगर आप कैलकुलेट करोगे, आपको 65% रिटर्न्स मिल रहे हैं फिलहाल एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम एज पर टुडे. सो कल लास्ट दिन है टू अप्लाई फॉर दिस IPO. आई वुड रिकमेंड जिसको भी लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है, यू कैन श्योरली गो फॉर दिस IPO. ट्राई योर लक. अगर आपको IPO मिल जाएगा, आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा ऑन द लिस्टिंग डे. तो आप लिस्टिंग डे पे आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो, एंड इफ़ यू वांट यू कैन इवन कैरी फॉरवर्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. एज ऑफ नाउ आई वुडंट रेकमेंड टू गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन दिस स्टॉक. आप सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द रिटर्न्स. सो आई जस्ट टेल यू द डेट्स एज वेल. सो 24 अगस्त को, जैसे मैंने कहा कि IPO का लास्ट दिन रहेगा. फिर इसका जो अलॉटमेंट रहेगा, दैट वुड हैपन ऑन 29th of August. सो तब तक आपको पता चलेगा कि whether you are going to get this IPO or not. आपको जो रिफंड है, अगर आपको IPO नहीं लगेगा, आपको रिफंड मिल जाएगा ऑन 30th of August. एंड इसका जो लिस्टिंग डेट है, दैट इज़ एट द एंड ऑफ द मंथ, 31st August तक ये स्टॉक लिस्ट हो जाएगा. Alright guys, so that was all the information I wanted to provide you with today. I hope you enjoying the videos and आपको काफ़ी knowledge आपका बढ़ रहा होगा. If there's anything else you want to learn, you can leave the comments below in the comment section. And for the ones who have not joined the WhatsApp group yet, you can click on the link in the description, या फिर you can drop a text to Charles. He'll add you in the WhatsApp group, because on the WhatsApp group we come forth with all the latest breaking news and stock recommendations at the earliest. So अगर आपको quick information चाहिए, you can just join the WhatsApp group and you can join the community. And for the ones who have not subscribed the channel, subscribe कर दीजिए, so it'll help me and our community as well. So that was all guys. You take care, you stay safe, and Jai Hind.